Okay, I think my volume is back and okay. Sorry for the entire challenge with the hardware here. I'm back. Namaste, everybody. This is Manish Gupta. We have been having our live sessions on YouTube every Saturday morning at 7 और वो लाइव बेस्ड सेशंस होते हैं. And in those life based sessions sometimes I do get a feedback that can you speak on the business side, क्या आप business के बारे में कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं. कभी कभी questions आते हैं on the business side. And since the audience is live based, audience mein we have people from all walks of life. We got homemakers, we got students, we got youngsters, we got professionals, we got entrepreneurs. तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं उसको business based बनाऊं. So we did have some sessions on the business side, but still a lot of questions were unanswered. So हमने सोचा क्यों ना फिर हम एक live कुछ करें business side में. तो ये पहला initiative है to be on the business side. And this is going to be an evening session once a week. We are deciding ki date wo Thursday ho ya Wednesday ho ya Friday ho. We'll see how it clicks, but usually it will be in this evening at 7 for around 20-25 minutes to 30 minutes. ऐसा question answer session रहेगा on the business side. So entrepreneurs जुड़ेंगे, people who are looking out for being entrepreneurs या जिनका business associations हैं, अगर उनको कुछ questions होंगे on the team side, on the strategy side, on the business functioning side, the operation side, तो जो भी मेरी काबिलियत होगी मैं वो बताने की पूरी कोशिश करूंगा अपने साइड से. For those of you who don't know me, this is Manish Gupta, and I've been an entrepreneur all my life. ऐसा कह सकते हैं कि I was born into an entrepreneurial family because that's what our business was. Our background is that family is into business, brought up into an entrepreneurial family, and more so the last 25 years मेरे entrepreneurship में निकले हैं. For there have been wonderful entrepreneurs around me. करीब 1800 entrepreneurs हैं from Pune and Maharashtra. Those who have given me the opportunity to handhold them and to take their businesses to the next orbit. So entrepreneurs हैं from 30 plus different industries. जिनके टर्नओवर्स 5, 10, 15, 100, 200 करोड़ तक के हैं. सो फ्रॉम दी एमएसएमई और एसएमई इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करने का एक मौका मिला पिछले 20-25 साल. तो जो भी समझ मेरी है, जो भी समझ डेवलप हुई है इन एंटरप्रेन्योर्स के साथ, इनके साथ काम करके, जो भी समझ डेवलप हुई है अपने बिजनेस को चला के, बिकॉज आई गॉट अराउंड माई 5 बिजनेसेस व्हिच आई एम रनिंग, एंड उसमें से जो समझ हुई है तो उसमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा जो भी मेरी काबिलियत रही है. So you can shoot your questions if you have any, and I will also share about a subject which I have thought of to share with you. So that's what this MG Live is all going to be about, and this is the first episode or first of the series of MG Live. So here we go, and you can give me your inputs and your comments. I'll be going through the comment section here. We just had some technical issues and we started a bit late. In fact, we started and then we had to cut it down and start again. So thank you for joining us, whosoever has joined in. You can have your questions lined up for us. आज का मेरा सब्जेक्ट है just to build and to start up, and as and when you have your questions you can ask me those questions. तो एक बड़ा पेन एरिया है एंटरप्रेन्योर्स का, और वो एरिया है द पीपल साइड ऑफ द बिजनेस. And whenever I visit organizations, whenever I'm there in the company of entrepreneurs, ये सवाल मेरे से अक्सर पूछा जाता है कि सर on the people side, ये जो challenges हैं, how do we handle this? और challenges जो है ना मेरे पास जो आते हैं वो घूम फिर के 5-6 categories में आते हैं about the people side. और मेरा हमेशा कहना होता है entrepreneurs को कि having a challenge is not a problem. ये challenge का होना, कोई सामने से चुनौती होना जो मुश्किलात होती है उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही चैलेंज हर दिन आना, यू आर फेसिंग द सेम चैलेंज डे आफ्टर डे और वीक आफ्टर वीक और मंथ आफ्टर मंथ और ईयर आफ्टर ईयर, ये एक गंभीर बात है. तो कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जो हमने आज फेस नहीं करी और वो मुसीबत बन के आ रही है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. बट एक सिचुएशन जो हमने पिछले साल फेस करी और वही सिचुएशन को आज हम फेस कर रहे हैं और पिछले साल भी हमारे पास उसका सॉल्यूशन नहीं था, आज भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो ये एक सोचने वाली बात है.
So people side has been one issue which people have been grappling with, people have been struggling with for years. तो मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं कि सर अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर अच्छे लोग टिक नहीं पाते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि सर लोग तो हैं लेकिन समवेयर दे आर नॉट गुड इनफ, ये जो पोजीशन के लिए जो हमने रखा है इनको, वो पोजीशन पे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट गुड इनफ, लेकिन हम काम चला रहे हैं सर, खींच रहे हैं इनके साथ। कभी कभी एंटरप्रेन्योर मुझे मिलता है, कहता है कि सर ये इनको डेलीगेट करना टास्क, इनको बताना, इनको समझाना कितना मुश्किल होता है, कभी कभी मन करता है कि खुद ही कर लूं काम। कोई एंटरप्रेन्योर बोलता है कि सर एक सेंस ऑफ इनडिफरेंस दिखता है मुझे कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में, कि किसी को पड़ी नहीं है, किसी को लगता ही नहीं कि ये ऑर्गेनाइजेशन उनका है, और काम चल रहा तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है, समवेयर काइंड ऑफ डिसकनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ हम अपनी जान लगाते हैं कंपनी में, और फिर जाके अंदर से जब देखते हैं कंपनी के अंदर जाके कि देयर आर पीपल जिनको पड़ी नहीं है, तो ऐसा खून खौलता है, तो ऐसा क्यों है सर, और ऐसा क्या क्या करें जिससे ये चेंज हो जाए। सो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं विच आर पीपल बेस्ड, एंड आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दैट बिजनेस स्किल्स आर एक्चुअली पीपल स्किल्स। कि बिजनेस को अगर अच्छा करना है, बिजनेस को हमने बड़ा बनाना है, बिजनेस को एक ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, then you got to understand that apart from technology, apart from the cash flow, apart from the capital which you want to bring in, apart from the technology which you want to bring in, apart from the kind of product which you're thinking about or the service which you want to give, you have to understand that the people side of business is the factor. आप अच्छे लोग हटा दीजिए किसी भी अच्छी कंपनी से, फिर वो कंपनी रहेगी नहीं। इनफैक्ट आप एंटरप्राइज की अगर आप बात करोगे, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, तो एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग एल्स बट अ ग्रुप ऑफ पीपल ना। लोग ही तो हैं जो आते हैं मिलके और काम करते हैं, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के को डेवलप करने के लिए जो लोग लगते हैं, उन लोगों के बारे में ऑन द पीपल साइड ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। तो वो प्रोडक्ट को लाने में, बनाने में जान लगा देते हैं, वो मार्केट तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग के एफर्ट्स बड़े लगा देते हैं, यू नो कैपिटल रेस करने के लिए, फंड्स रेस करने के लिए वो जान लगा देते हैं, बट समवेयर ऑन द पीपल साइड कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई थॉट आई विल शेयर अ फ्यू इनसाइट्स फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल ऑफ यू, and also pick up a few challenges which you may have in relation to people. So namaste everybody, those who have just joined in. Thank you for being there, and do share, do keep on writing there on the comment section whatever inputs you want to give to me on the people side. So we'll keep our communication, our understanding today on the people side only, and if you have any queries, do let me know. Namaste Vinayak, Santosh, good to have you all here this very evening. And this is the business live webinar, or the live talk which we are doing. Thank you, Rajesh. He says it's very, very important subject. Thank you, Harish. And we had some technical issues initially, which we got sorted out, and here we are. So those who have just joined in, who could not log in before, we have a live-based product, live-based talk, which happens every Saturday morning, and we thought of starting a business-based talk, and we thought let's have it in the evening. So let's see how it can move on next week, maybe on Wednesday or on Thursday evening. We intend to do one live every week. Chalo, great, wonderful, and let's move on. तो ये people side of business जो है, मेरा ऐसा मानना है कि this is the pain area which we all go through, all entrepreneurs, including me and everybody whom I've met. And ये हमारी कामयाबी या नाकामयाबी के बीच का एक बहुत बड़ा एक स्तंभ है जिसको हमें हैंडल करना चाहिए. Organizations are as successful or as unsuccessful as the people in the organization. अच्छे लोग होंगे तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच लीजिए जो आपको लगता है कामयाब है, सक्सेसफुल है, और उसके अंदर के लोग हटा दीजिए आप, and you will realize that the organization cannot and couldn't have been successful without those people. तो ये हमें मालूम भी है, लेकिन अफसोस ये है कि मालूम होने के बावजूद भी many of us, we don't invest ourselves enough in doing things about the people side of business.
We don't invest ourselves enough in understanding this people side of business. ये एक challenge है. अभी कुछ दिन पहले I was taking a webinar and I was sharing the same side, same aspect to entrepreneurs who were there listening to me on the webinar कि people side of business को आप पकड़िए और उसको उस पे काम करिए. Now I'll share with you some insights which are happening in today's scenario. आज की दुनिया में challenges क्या हैं on the people side. Let me share a few with you. Now पिछले 2-3 साल में especially the COVID and the post COVID era एक phenomenal change हुआ है. एक phenomenal मतलब जबरदस्त परिवर्तन आया है. जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या लोग जो जॉब करते हैं, जो एम्प्लॉइज जिनको हम बोलते हैं, उनकी सोच में एक जबरदस्त परिवर्तन आया. And the change is that the way they look at the job and the way now they connect the meaning to the job कि ये जो काम है, ये काम उनके लाइफ में क्या मायने रखता है, ये इतना जबरदस्त बदलाव आया है that as entrepreneurs or as employers we have to kind of align ourselves with this change which they have gone through. मैं रिपीट करता हूं कि टीम मेंबर्स या फिर जो एम्प्लॉइज हैं या फिर जो जॉब सीख कर रहे हैं, उनकी सोच में बड़ा परिवर्तन आया है उनके काम को लेके कि उनका काम क्या है, उनका काम क्या मायने रखता है, उनका काम उनकी जिंदगी में क्या मतलब रखता है. यहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है उनकी लाइफ में पिछले 2-3 साल के अंदर. As entrepreneurs who are providing such opportunities, we have to align ourselves with that change which they have gone through. पहले कैसे होता था कि a team member is investing time, so वो इन्वेस्ट करता है अपना समय एक कंपनी में, तो वो रिटर्न्स मांगता है. वो कहता है गिव मी रिटर्न्स. तो रिटर्न होते थे नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ अ जॉब सिक्योरिटी कि अगर जॉब सिक्योरिटी है तो वो कहता था यार दिस इज गुड इनफ रिटर्न फॉर मी बिकॉज इट्स एन इन्वेस्टमेंट ना. तो जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप रिटर्न मांगते हो. तो एक टीम मेंबर जो है अपने जिंदगी का कुछ समय एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो कुछ साल हो, कुछ दशक हो. आई विश दैट दे गो ऑन टू वर्किंग फॉर इयर्स. सो दे इन्वेस्ट देयर टाइम. उस इन्वेस्टमेंट के बदले में रिटर्न आता है. तो पहले आज से कुछ साल पहले द रिटर्न वाज जॉब सिक्योरिटी. क्या मेरी जॉब सिक्योर है? तो उस जॉब सिक्योरिटी से उसको एक मेंटल पीस मिलता था और उसके घर वाले भी एकदम ऐसे रिलैक्स रहते थे कि यार इसका जॉब लग गया एंड दिस अ सिक्योर जॉब. And so every month there will be a cycle which will be taken care of, the cash flow will come in and हमें ऐसा पैसे को लेके ज्यादा घबराना नहीं है. एक ऐसी सिक्योरिटी मिलती थी. दूसरा उसको रिटर्न मिलता था या चाहता था कि एक डिसेंट कॉम्पनसेशन हो कि जो सैलरी है इट शुड नॉट बी लेस बट इट्स ओके दैट मेरे जो काबिलियत है अगर इफ इट इज बीइंग कॉम्पनसेटेड इनफ देन इट्स गुड इनफ. सो एक डिसेंट कॉम्पनसेशन, एक डिसेंट सैलरी की उसकी एक डिमांड थी, एक चाहत थी और वो रिटर्न्स चाहता था. तीसरा, और ये तीसरा ऑप्शनल था कि अगर मुझे कुछ एक क्लैरिटी मिल जाए कि मेरे को कुछ मौके की क्लैरिटी मिल जाए कि मैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ूंगा या फिर मैं कुछ बड़ा कुछ कर पाऊंगा कंपनी के अंदर, अगर ऐसा कुछ क्लियर रास्ता मिल जाए, ये सोने पे सुहागा है. तो ऐसा 3 चीज लेके एक टीम मेंबर पहले जॉब ढूंढता था या फिर ऐसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांगता था. अब क्या हो गया है कि पिछले कुछ सालों में द वे द टीम मेंबर नाउ लुक्स एट हिज जॉब, द वे द टीम मेंबर नाउ एक्सपेक्ट्स द रिटर्न्स फ्रॉम द जॉब हैज चेंज्ड फिनोमिनली. और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस चेंज से अपने आप को अलाइन नहीं कर पाए. अब चेंज क्या हो रहा है मैं आपसे शेयर करता हूं, बट बिफोर दैट लेट मी हैव अ फ्यू ऑफ यू हियर कि आप मुझे बताइए कि is it something which is happening in your organization where now it's kind of difficult for you to get the right kind of people. Let me have some some clarity from your side ki let me go in the comment section. And absolutely right Vaishali कि ये आपको समझना जरूरी है कि अभी जो टीम मेंबर है ना, जो जो प्रोस्पेक्टिव टीम मेंबर जो आपके यहाँ ज्वाइन करना चाहता है या जिसको आप अपने यहाँ ज्वाइन कराना चाहते हो, उसके मन में क्या चल रहा है, आपको उससे अलाइन होना पड़ेगा बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द एंटायर फोर्स ऑफ पीपल हु लुकिंग फॉर जॉब्स. जैसे हम एंटरप्रेन्योर्स वी रिप्रेजेंट द एंटरप्रेन्योर साइड ऑफ स्टोरी. कोई इंटरव्यू देने आ रहा है, कोई हमारे यहाँ काम कर रहा है, ही और शी रिप्रेजेंट्स द जॉब सीकिंग साइड ऑफ द स्टोरी.
तो ये जो जॉब सीकर्स हैं या जो जॉब कर रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, कोई जो इंटरव्यू देने आता है वो उनको रिप्रेजेंट करता है, ऐसा हमने मानना चाहिए और समझना चाहिए इनके मन में क्या चल रहा है। सो द मीनिंग दे हैव और दे आर अटैचिंग टू ऑफ वर्क टू देयर लाइव्स, कि उनका काम का उनकी जिंदगी से क्या कोरिलेशन है, उसका मतलब बहुत बदल चुका है पिछले कई साल, कुछ सालों में, और वो हमें समझना चाहिए। तो मैं आपको 3-4 बातें बताता हूं कि अभी वो क्या इन्वेस्टमेंट चाह रहा है अपने काम से, वो अपने काम से क्या रिटर्न्स मांग रहा है, कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है अपने कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ साल आपके पास, तो व्हाट रिटर्न्स दिस पर्सन इज आस्किंग, डिमांडिंग फ्रॉम यू। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि साहब, he is looking for a return where he says, am I working in an organization which has got something bigger lined up? Now bigger not in terms of कोई आप दुनिया हिला देने वाला कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, वो नहीं। he says कि is it something big which we are chasing? Is it something meaningful which we are doing as an organization? I want to be a part of an organization which is rising or which is above itself. It is not just a typical organization जो अपना प्रोडक्ट बना रहा है, बेच रहा है, पैसा कमा रहा है, और the life is going on. He wants to be a part of an organization which has got some purpose. He wants to be a part of an organization which is chasing something bigger than survival. The team member wants to feel great about being a part of an organization which will make him feel great about the way he spent his work today. तो आज उसको लग रहा है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी चाहिए मुझे, जहां पर कुछ मकसद है, जहां पर कुछ पर्पस है, जहां पर ओनर जो है या जो एम्प्लॉयर है, वो कुछ बड़ा डिफरेंस लाने की सोच तो रखता है, हो नहीं हो अलग बात है, लेकिन कुछ मीनिंगफुल या कुछ पर्पसफुल जर्नी पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर साधारण एक एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन बना के रखिए कि काम करो, पैसा कमाओ, पैसा लेके जाओ, या फिर देयर इज समथिंग बिगर लाइंड अप। दैट्स द फर्स्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट a great team member or a right team member is asking. तो अब ये तो एक सवाल क्रिएट करता है अपने मन में, ये तो एक माय शेयरिंग शुड क्रिएट अ थॉट इन योर माइंड, कि क्या हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है which has got a deeper purpose, which has got a purpose to conduct our work, या फिर हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए या अपनी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए या फिर जस्ट टू मेंटेन द स्टेटस को, उसके लिए हम अपना काम कर रहे हैं। एक सवाल तो आता है, आना चाहिए आपके मन में, कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर क्रिएटिंग, बिकॉज दिस टीम मेंबर वांट्स टू वर्क विद अ पर्पसफुल ऑर्गेनाइजेशन। He checks organizational background first. वो तो करेगा ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड तो मुकेश वो चेक करेगा, because just like you check the background of the candidate, and वो हमने करनी चाहिए, वैसे वो भी हमारे बारे में सब छानबीन तो करेगा, और आजकल छानबीन करने के तरीके हजार हैं। सो पहले नहीं होता था, आज वी आर देयर ऑन सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज ओपन अबाउट अस, देयर आर पीपल हु हैव वर्कड विद अस, दे आर देयर वर्किंग इन सर्टेन कंपनीज, उनका पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री पूरा रिकॉर्डेड है। People can go into the profiles and see if they worked with you, what they feel, what they have spoken about you, how they felt when they were working with you, what are their feedbacks about your organization. They may even contact them and ask them, भाई मैं इस कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, is it worth applying or not? तो ये सब ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड चेक तो वो करता ही है। आप जितनी चेक करते हो किसी कैंडिडेट की बैकग्राउंड, उससे 10 गुना ज्यादा शायद वो करके आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ राइट कैंडिडेट, क्योंकि उसको अपने जिंदगी के कुछ दिन, कुछ पल आपके यहाँ इन्वेस्ट करने हैं। तो वो आजकल का ये जो अच्छा टीम मेंबर है, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट टीम मेंबर, आजकल का राइट टीम मेंबर इज लुकिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही वांट्स टू वर्क एज एन इन्वेस्टमेंट, कि यार मैं ये इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहा हूं अपने कुछ साल इस कंपनी के अंदर, और वो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स क्या चाहता है वो उसको बहुत क्लैरिटी है। मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट का, कि आपको समझ में आ जाए, बिकॉज एज एंटरप्रेन्योर्स हम सबको मालूम है ना इन्वेस्टमेंट क्या है। सो व्हेन वी इन्वेस्ट समवेयर आर कैपिटल और आर रिसोर्सेज, तो हम कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हम इन द प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। सो वी हैव दिस वन क्वेश्चन इन आवर माइंड, व्हाट्स गोइंग टू बी द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई क्या है। सो वी थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि भाई इसका कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। इन द सेम वे दिस टीम मेंबर
is now coming with this clarity कि मैं अपने जिंदगी के कुछ समय कुछ साल इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूं, what's going to be my return on investment, and he is very clear. He is very clear about his returns of investment. आप क्लियर हो ना हो, वो तो बड़ा क्लियर होके आ रहा है, और आपको अगर आपको उसकी क्लैरिटी नहीं है, then you will have a problem on the people side. तो पहली क्लैरिटी वो लेके आ रहा है कि is this an organization which is driven by a purpose? Is this a meaningful organization? That's the first return on investment which he's asking. Second return on investment he's asking is, I want to be valued in the organization. Now, when I say valued, means मैं जो काम कर रहा हूं, so is this adding on? तो वैल्यू कब होती है उसकी? जब उसको रिकॉग्निशन मिलता है ऑफ द वर्क. सो जो काम कर रहा है, क्या वो काम का पर्पस से कनेक्ट है? जो वो काम कर रहा है, इज इट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन अ वे वेयरइन ही फील्स कि मेरा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कि ये जो हम पर्पस के लिए जा रहे हैं, इट इज एडिंग ऑन टू द वर्ल्ड, इट इज एडिंग ऑन टू द कस्टमर साइड, इट्स एडिंग ऑन टू द मार्केट साइड. ये हमारी कंपनी कहीं ना कहीं एक अच्छा काम करने के लिए उतरी है एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में, और उस अच्छे काम में मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं. आई वांट टू बी वैल्यूड. I just don't want to be valued based on the money which I get. I want to be valued based on the work which I give. क्या मेरे काम की कदर है? क्या मेरे स्किल सेट्स की कदर है? क्या जो मैं टेबल में लेके आ रहा हूं अपने अपने हुनर को, क्या उसकी कदर है? अगर कदर है, that's the return on investment which he wants. So, as an entrepreneur, you got to ask, am I valuing my team members' capabilities or not? या मैं उसको फॉर ग्रांटेड लेके चल रहा हूं? क्या मेरे वो टीम मेंबर ये चाहता है एज अ रिटर्न कि एम आई बीइंग वैल्यूड इन द ऑर्गेनाइजेशन? और तो इसलिए आपने मैकेनिज्म्स लाने चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां आपका टैलेंट को जो है ना, जो अच्छा टैलेंट है, जो अच्छी काबिलियत लेके इंसान आ रहा है, आप उसके टैलेंट को आप वैल्यू कर पाओ, उसको रिकॉग्नाइज कर पाओ, उस टैलेंट को आप अच्छे जगह फिट कर पाओ. सो एक तो रिकॉग्नाइज करना कि हाँ तेरा अच्छा टैलेंट है, एक उस टैलेंट को अच्छी जगह लगा दिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यूइंग द टैलेंट. जब एक अच्छे टैलेंट को आपने गलत जगह बिठा के रखा हुआ है, दैट इज नॉट वैल्यूइंग द टैलेंट ना. फिर उसको तो बुरा लगेगा, यार मैं तो इतना काबिल हूं लेकिन मेरी काबिलियत को इस्तेमाल नहीं कर रहा है कोई. सो यू गॉट टू ensure that the talent is utilized in the best possible way, and that's how they feel valued. The third thing which he's looking for an environment where he can interact with some intelligent minds. तो वो चाहता है कि उसके आसपास के लोग भी अच्छे हों, उसके आसपास जिनसे वो रोज कंधे से कंधा मिला के 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहा है, वो भी उसके लेवल के हों, जबरदस्त हों. And that's what many companies are now aiming at. They're providing an environment in the organization where the person feels that यार इनकी संगत में रह के इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती. सो टीम बिल्डिंग और टीम वर्किंग जो है ना, ये तो गिवन है कि एक टीम वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक बड़ा अच्छा सा माहौल होना चाहिए जहां पर लोग आपस में मिलकर अच्छा टीम वर्क में काम करें. ये गिवन है, मतलब ये तो होना ही चाहिए. जैसे मैं बोलता हूं ना कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में है आप हैं, तो क्वालिटी तो होना ही चाहिए, इट्स गिवन. अब क्वालिटी कैन नॉट बी अ वर्च्यू विच यू ब्रैग अबाउट, कि आप उसका ढिंडोरा पीट रहे हो पूरे दुनिया में कि देखो मैं क्वालिटी माल बनाता हूं. अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो करना ही है. इन द सेम वे आप एक टीम वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, ये तो करना ही है. लेकिन वो टीम वर्किंग के ऊपर नेक्स्ट लेवल क्या आ गया है कि जिन लोगों के साथ ये आपका टीम मेंबर कंधे से कंधा मिला के 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहा है, क्या ये वो लोग हैं जिनके साथ ये रहना चाहता है? क्या ये वो लोग हैं जिनके साथ उसको काम करने का आनंद आता है? नाउ दैट्स व्हाट यू गॉट टू अंडरस्टैंड. एंड अच्छे लोग जो है इससे भी बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं और कहते हैं अगर ये रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का, तो फिर मैं इस कंपनी के बारे में सोच सकता हूं. So I've just shared with you three ways, three aspects. Rajesh says we should bring in depth in our selection process. Absolutely, Rajesh. I feel that's a very superficial. ये
ये तो इसमें मैं नेक्स्ट वीक बात करूंगा राजेश। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपने बात करी है कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है बड़ा सुपरफिशियल है। यू कुडंट बी मोर राइट देन दिस कि क्योंकि हम लोगों ने ना उस चीज को पकड़ा नहीं है ये, और ये पकड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपनी पीपल साइड की समझ को मजबूत नहीं किया है। I'm surprised many times when I meet entrepreneurs, तो ये लोग इतना जान लगाते हैं, इतनी समझ इतना अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं कि कौन सी मशीन खरीदनी है, और मशीन को दे विल गो टू एग्जीबिशंस, दे विल ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे विल गो थ्रू सर्च थ्रू वेबसाइट्स एंड क्योंकि वो कहते हैं यार इसमें इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये 50 लाख की मशीन है, 1 करोड़ की मशीन है, एंड दे विल पुट देयर एंटायर थॉट प्रोसेस एनर्जी इनटू फाइंडिंग द राइट काइंड ऑफ मशीन। तो मेरा हमेशा इनको कहना होता है कि जितना ड्यू डिलिजेंस तुम एक मशीन को लेने में कर रहे हो, उसका अगर 1/10 भी तुमने अगर लोगों को लेने में लगा दिया होता, यू वुड हैव हैड सम ग्रेट गाइज विद यू। आई रिपीट अगेन, जितना ड्यू डिलिजेंस तुम ये बाकी सब चीजों में लगाते हो ना कि कौन सी मशीन लेना है, कहां से कैश रेस करना है, मार्केटिंग में क्या एफर्ट्स डालने हैं, जितने तुम मारा मारी करते हो ना, ये बिजनेस लाके तुम इस फोरम में जाओ, उस फोरम में जाओ और वहां नेटवर्किंग करो, लीड्स लेके आओ, लीड्स देके आओ, जितनी मारा मारी तुम वहां करते हो, उसका 1/10, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 50%, मैं कह रहा हूँ 1/10 मारा मारी ऑन गेटिंग द राइट गाइज ऑन बोर्ड में करो। ट्रस्ट मी, you will end up having some great guys working with you। लेकिन अफसोस कि हम लोगों के संदर्भ में हम उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम बस इंटरव्यू के लिए हम लोगों को बोल देते हैं, लुक एट द वे यू सिलेक्ट। राजेश आपने गलत तार छेड़ दिया एक्चुअली। आई विल नॉट स्पीक ऑन दिस बिकॉज इट इज सच अ सब्जेक्ट दैट आप इसमें जितना डेप्थ में जाओगे उतना कम है। तो लेट मी जस्ट कम बैक टू व्हाट आई वाज शेयरिंग कि आज के लोग जो है आज के प्रोस्पेक्टिव टीम मेंबर्स, ये लोग अपने टाइम के इन्वेस्टमेंट के बदले में ये लोग क्या मांग रहे हैं? तो मैंने आपसे पहले कहा कि ये लोग मांग रहे हैं कि एक पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या ये पर्पस ड्रिवन हो सकती है? सेकंड, वो कह रहे हैं कि क्या आप एक एक मेरे काम को वैल्यू कर सकते हो, मेरे हुनर को वैल्यू कर सकते हो बाय पुटिंग माय टैलेंट टू द राइट यूज, बाय रिकॉग्नाइजिंग माय कैपेबिलिटीज, कैन यू वैल्यू मी? थर्ड, ये लोग कह रहे हैं कि कैन यू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फॉर मी, दैट आई वांट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वेयर आई वर्क विद द बेस्ट गाइज, एंड जब उनके साथ मैं काम करूंगा इन अ वेरी डायनेमिक एनवायरनमेंट, कि मैं उनसे दो चीज सीख रहा हूं, वो मेरे से दो चीज सीख रहे हैं, देयर इज हेल्दी कंपटीशन हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर एक बड़ा अच्छा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस निकलता है, क्योंकि मकसद बड़ा है और लोग भी बढ़िया हैं, जान लगाने को सब बैठे हुए हैं, तो उनके साथ रह के मैं ग्रो करूंगा, उनके साथ रह के वो ग्रो करेंगे मेरे साथ वो रह के। तो ऐसा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दैट वी ऑल आर चेजिंग अ ग्रेट पर्पस, ये मैं चाहता हूं। ऐसा उसने 3 बातें तो आपके सामने रख दी। अब चौथी बात यह है कि वो कह रहा है कि आई वांट टू फील ट्रस्टेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई वांट टू फील ट्रस्टेड, एंड ट्रस्टेड मींस आई वांट टू फील ट्रस्टेड, एंड व्हेन डू आई फील ट्रस्टेड? व्हेन यू गिव मी सम बिगर अपॉर्चुनिटीज। आप जब मुझे बड़े मौके देते हो, देन आई फील ट्रस्टेड। जब आप मुझे कुछ जिम्मेदारी दे ही नहीं रहे हो, तो फिर मुझे कैसे लगेगा आप मुझ पे विश्वास करते हो? मेरी काबिलियत पे विश्वास का मतलब है कि आपने मुझे कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी है, एंड दैट्स वेयर द प्रोफेशनल विद इन मी ग्रोस। दैट्स वेयर द पर्सन विद इन मी एज a professional, a die-hard professional grows, जब आप मुझे कुछ बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। तो आई वांट टू फील ट्रस्टेड। देखो, अभी मैंने आपसे 4 बातें करी हैं, इन चारों बातों में कहीं पैसा नहीं है कि कितना कॉम्पोजिशन चाहिए बताओ। वो कॉम्पोजिशन सही होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, वो तो गिवन है, वो तो गिवन है। यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दैट। बट जो मैंने आपसे 4 बातें करी हैं, ये रिटर्न्स चाह रहा है, ये एक रिटर्न चाह रहा है एक प्रोस्पेक्टिव टीम मेंबर फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये रिटर्न दे पाए, मेरा विश्वास करो कि आपके काफी हद तक, आई एम नॉट सेइंग 100%, काफी हद तक पीपल बेस्ड चैलेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉल्व होंगे।
You can throw some question, because I got another 5 minutes left for this live to end. And if you want to, if you have a question for me, you can throw a question for me, and you know then on the people side of business. So I've just shared with you the 4 reasons, and the fifth one is also very important. And the fifth thing which he is looking for is कि ये क्या ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को इंटीग्रेट करने के लिए सक्षम है. Is this organization capable of providing some kind of integration between my personal aspirations, my personal life and my professional life? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रोफेशनल जर्नी में मेरी पर्सनल लाइफ की बैंड बज जाए. कैन मैं क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को मेरी पर्सनल लाइफ की पड़ी है कि नहीं पड़ी है, या इसको सिर्फ अपने काम, अपने मकसद, अपने प्रॉफिट्स की पड़ी है. And that's the fifth thing which today's aspiring team member is looking in a company. तो आपको ये पूछना पड़ेगा खुद से कि am I providing that environment where the personal aspirations of a team member is being taken care of. और ये जो 5 बातें मैंने आपसे करी है ना, this is what this team member is looking out for as a return on investment. और जब वो इंटरव्यू देने आता है ना, वो यही चीजें देखना चाहता है कि आपकी बातों में है कि नहीं, कि आर यू स्पीकिंग a language which speaks about a purpose. He's going to ask you questions. आप तो क्वेश्चन पूछोगे, वो भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, where he wants to see what kind of people you have with you. He wants to see what kind of, how do you uphold the value of people who bring in the talent. He wants to see in you कि आप जो है कैसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इंटीग्रेट करते हैं, कैसे आप लोगों को बढ़ाते हैं, आपके पास क्या कहानियां हैं. So he would like to see you invested in what he believes in and what he's looking out for. ये बड़ा जरूरी है. तो इस चीज को करने के लिए मुझे लगता है कि आपको पीपल साइड में काफी टाइम और ध्यान और एनर्जी देनी चाहिए. जितना एनर्जी आप अपने मशीन्स को लाने में लगाते हो, जितनी एनर्जी आप, अगर यू इनटू कंस्ट्रक्शन, जितना आप प्लॉट खरीदने में सोचते हो या बिल्डिंग बनाने में सोचते हो, जितना आप आर्किटेक्ट के साथ दिमाग लगाते हो कि मुझे कैसी बिल्डिंग चाहिए, जितना आप सोचते हो कि मुझे क्या मार्केटिंग इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, मैं कहता हूं उतनी ही सोच और उतनी ही लगन आप पीपल साइड में दीजिए. इसको फॉर ग्रांटेड मत समझिए, बिकॉज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो योर नंबर 1 प्रॉब्लम विल बी द पीपल प्रॉब्लम. जब नंबर 1 प्रॉब्लम पीपल प्रॉब्लम है, बट योर नंबर 1 अटेंशन इज नॉट पीपल अटेंशन, तो कैसे सॉल्व होगा सर, कैसे होगा? तो आज के एमजी लाइव में ऑन द बिजनेस साइड हल्का सा स्निपेट फ्रॉम माय साइड ऑन द पीपल साइड ऑफ बिजनेस. तो नेक्स्ट वीक आपको मिलूंगा विद सम with another aspect of the people side, and maybe we'll talk about what Rajesh has asked कि selection process जो है हमारा, कैसे हम उसको थोड़ा in depth बना सकते हैं, and we don't make it very shallow which it is for many organizations. कि जैसे मैं बोलता हूँ ना कि बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को इंटरव्यू लेना नहीं आता, उनके इंटरव्यू में 3 क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं बार-बार बोलता हूँ, एंड आई एम शेयरिंग द सेम थिंग विद ऑल ऑफ यू. उनको इंटरव्यू में सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछने आते हैं. एक, कहाँ काम किया, दूसरा, क्यों छोड़ा, और तीसरा, कितना लेगा. एंड many entrepreneurs don't have clarity about क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछ के क्या समझ में आएगा. इनफैक्ट जो प्रोस्पेक्टिव टीम मेंबर है, वो ज्यादा पेपर प्रिपरेशन से आता है और वो आपसे ज्यादा भयंकर सवाल पूछ लेता है. So we'll speak next week on that side of the business. So thank you so much for being live with me, and we will take care of the technical side, which we had some issue in the beginning, but make the most of your business life, and see you next week and share it with your friends. आज पहला था, तो just to start off kickstart, but I want your involvement, your engagement by some questions which you can ask me. And all the best to all of you for this week. Make a great week, and धंधा करते हैं, चलिए बढ़िया करते हैं और लोगों को साथ लेके चलते हैं आगे. चलिए, God bless, and thank you so much. Thank you. Thank you, Avinash. Thank you, Rajesh, for being there. God bless you all.